Alright. Last time we had stopped over here, this particular slide, where we discussed about how countries have used international law for effective implementation of their domestic laws. Whenever there is a dispute, and in that dispute there is a foreign element. Foreign element means any foreign citizen or a foreign company is involved. Okay. Now, in this situation, we last time we understood that in modern times or in modern days, somewhere down the line, your sovereignty is impacted. Sovereignty का हमने कल देखा था definition की there is no external or internal pressure on the government to make certain policies. ठीक है? अगर आपको कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए from external or internal organization. So it can be USA external or it can be internal pressure such as it can be industrialists, it can be agriculturalists, it can be any anti-social elements. Okay. For example, not related to private international law, but Bandit Queen, that movie when it was released, in that movie basically they mentioned about the Gujjar community. So Gujjar community people said that this particular movie is defaming our community. So at that time, Supreme Court of India it held that basically in that movie it's a life story of the Daket Fulan Devi. In that, whatever atrocities were committed against her by those people, they were unfortunately Gujars. That doesn't mean that the whole community is like that. And they allow because like that if you see in the Fana movie, Amir Khan, it was not released in Gujarat because he supported the Narmada Bachao Andolon. So that's why Gujarat government did not allow it. But that comes under state jurisdiction. And suddenly the whole country the movie was released. So ऐसा कोई भी internal organization भी आपको pressurize नहीं कर सकता कोई specific policy करने के. That's why it's sovereign. But we have to understand that when it comes to international relations, we have to be a little flexible and we, at the same time we also have to look at foreign judgments. We have to also study foreign laws whenever a foreign element is involved in a dispute, even though the jurisdiction is within India. Jurisdiction भले ही इंडिया का हो, but if suppose there is a problem, there is a trouble, we have to look into the international law as of the other countries. But then, nations have long found that they cannot be sheltering behind the principle of territorial sovereignty, afford to disregard foreign rules of law merely because they happen to be different from their own internal system of law. What do you mean by territorial sovereignty? Territorial sovereignty का मतलब है any example. Territorial sovereignty means within your own territory only your laws will be applicable. Simple. आपके ऊपर कैसा लॉ बनना चाहिए कैसा नहीं बनना चाहिए इसके ऊपर आपको कोई बता नहीं सकता. Within your own territory आपके लॉ चलेंगे. And at the same time ये realization आ गया है देशों को कि under territorial sovereignty you cannot say that we will not respect foreign laws. ये realization आ गया है. क्योंकि कभी ना कभी हमारे भी जो डिप्लोमेट्स हैं या हमारे जो सिटीजन्स हैं जो बाहर देश में जाते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉड प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स क्योंकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज बाहर देशों में होती है उनके शादियां कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन इज फ्रॉम न्यूजीलैंड द वाइफ इज फ्रॉम थाईलैंड ऐसा भी होता है सो ऐसे वक्त आप किसी पर्टिकुलर कंट्री का लॉ नहीं इंप्लीमेंट करोगे ऐसा बोल नहीं सकते. Correct? So that's why countries have realized that आप बस ये नहीं कह सकते कि ये हमारी टेरिटोरियल सुवरेनिटी है तो हम फॉरेन लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. You will have to respect and you will have to follow the laws even if they are not your own laws. Okay? Moreover, as will be shown later, it is no derogation of sovereignty to take account of foreign law. आप जब किसी फॉरेन लॉ को अपने खुद के देश में इंप्लीमेंट करते हैं या किसी फॉरेन जजमेंट को आप अपने जजमेंट में इस्तेमाल करते हैं that does not mean that your sovereignty is getting impacted. It does not mean that your sovereignty is getting derogated. Instead, मैंने आपको कल भी बताया था, it is basically आपकी जुडिशियल सिस्टम मैच्योर हो रही है, आप फॉरेन लॉज को समझ रहे हो, आप फॉरेन जजमेंट्स को इंटरप्रेट कर पा रहे हो, and according to your circumstances उनको आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो. तो
इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सोवरेनिटी खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका देश, आपकी जुडिशियल सिस्टम ये मैच्योर हो गई। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड लोग बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, बहुत ट्रेड बढ़ चुका है, लोग एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, शादी के बाद दूसरे देशों में जाके सेटल हो रहे हैं, पर सिटीजनशिप जल्दी नहीं मिलती। You have to apply for citizenship of various other countries. इंडिया में ही सिटीजनशिप मिलना बहुत मुश्किल है। आपने सुना ही होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए कितने आंदोलन हुए कि पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट अमेंडमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी। ओके, सो नाउ कंट्रीज हैव रियलाइज्ड कि आपको फॉरेन लॉज, फॉरेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी समझना होगा। आप सिर्फ अपना खुद का लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज़ दैट कैन लीड टू grave injustice. ऐसे मैं बताता हूँ, आगे एग्जांपल्स हैं। The recognition of a foreign law in a case containing a foreign limit may be necessary for at least two reasons. Why do you need to use foreign laws in your domestic jurisdiction? So, two reasons. First, the invariable application of the law of the forum, that is the local law of the place where the court is situated, would often lead to gross injustice. कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने खुद के देश में होते, अगर आपके खुद का देश होता तो आपको ज्यादा कंपनसेशन मिल सकता था। आपका खुद का देश होता तो आपको न्याय सही तरीके से मिलता जो आपको लगता है। कई बार मैंने आपको बताया कि दूसरे देशों में पर्टिकुलर लॉज है ही नहीं। देयर आर नो लॉज ऑन टैक्सेशन, सम कंट्रीज डोंट हैव लॉज ऑन साइबर क्राइम, सम कंट्रीज डोंट हैव लॉ ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे बहुत देश हैं जिनके पास ये कायदे ही नहीं है, और अगर कायदे हैं उनको समझ में नहीं आते। सोमालिया, ओमान, येमेन, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, सूडान, मैं देशों के नाम लेते रहूंगा, और उन देशों के पास ये लीगल सिस्टम जितनी हमारी तरह लीगल सिस्टम है उनकी नहीं है। हमारा लीगल सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, इसलिए इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारी लीगल सिस्टम अच्छी है, कल कुछ गड़बड़ होगी तो न्याय मिलेगा, उसमें फॉरेन लॉज को हम कंसीडर करेंगे, समझ रहे हो? बट उसी जगह में वीडियो इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, वीडियो इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान, वीडियो इन्वेस्ट इन नॉर्थ कोरिया, नो, बिकॉज आपको गारंटी नहीं कि मेरा पैसा जाएगा, लेकिन आएगा क्या रिटर्न में, कोई गारंटी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लीगल सिस्टम अच्छी रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, मालदीव्स, फिजी आइलैंड, पैसिफिक ओशन, इनको कहा जाता है टैक्स हेवन्स, जहाँ पे टैक्सेशन के लिए कुछ आपको कोई रिकॉर्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा है उसमें से आपको गवर्नमेंट को थोड़ा सा कमीशन देना होता है बाद में। गवर्नमेंट नहीं पूछेगा ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इंडिया में पूछा जाएगा ये पैसा कहाँ से आया। देखिए, आप जॉब करते हैं या विजिटिंग है, आपकी खुद की एकेडमी है, ये सब पूछा जाएगा कहाँ से आ रहा है पैसा। ये देश नहीं पूछते, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। They will not ask the source. That source can be human trafficking. That source can be drug trafficking. है ना? So अगर ऐसे देश रहेंगे तो क्राइम को बढ़ावा मिलेगा. And this money can be invested in terrorism. This money can be invested to further the crime. है ना? इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि local laws उतने strong नहीं होने के कारण injustice हो सकता है. Example लेते हैं. Suppose that a person engaged in English litigation, मतलब Britain में litigation चल रहा है, is required to prove that she is the lawful widow of a man. So ये English में UK में prove करना है कि मैं इस particular person की विधवा हूँ, who has just died. The marriage having taken place abroad many years ago. Abroad कहीं पे शादी हुई है और साल हो गए शादी को, but वो अभी UK में रहते हैं और अभी कोर्ट में उसको सिद्ध करना है कि वो मेरा पति था, मैं उसकी विधवा हूं। The marriage ceremony, though regular according to the law of the place where it was performed, did not perhaps satisfy the formal requirements of English law. हम एग्जांपल लेते हैं क्या, मैंने आपको कल भी बताया था कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जब भारत में शादी होती है तो उसको हम एक्सेप्टेबल मैरिज, एक लीगल लेजिटिमेट मैरिज मानते हैं। लेकिन नमस्ते लंदन में जैसे कैटरीना कैफ ने किया, वैसे वो यूके में जाके बोल देंगे कि भाई हमारी शादी नहीं है, रिकॉर्ड कहां पे है, इज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द मैरिज। यही केस है कि भाई उधर जाने के बाद अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर आई बिलोंग, वहां की शादी लेजिटिमेट है, लेकिन यूके के लिए उनको डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन का,
वो नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, तो आप क्या बोलोगे? शी इज अनमैरिड। नहीं ना, ऐसा नहीं करते, दिस इज इनजस्टिस। बट nevertheless, to apply the English Marriage Act 1949 to such a union and thereby to deny that the couple were man and wife would be nothing but a travesty of justice. नहीं, हमारे कायदे के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट्स जो हमारे क्राइटेरिया है शादी के, आप वो फुलफिल नहीं करते, इसलिए आप उनकी विधवा नहीं है। And they were in a marriage for several years. And suddenly you are in a different country where you don't have any proof to show that you are married. This is injustice. इसीलिए यूपी का जो कोर्ट होगा उसको इंडियन लॉ पढ़ना पड़ेगा। इफ सपोज दैट वीडियो इज फ्रॉम इंडिया, हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये बोल रही है ऐसा नहीं, सच है क्या झूठ है, तो फोटोग्राफ्स होंगे, कुछ तो होगा ना शादी, रिलेटिव्स होंगे, जान पहचान वाले दोस्त जहाँ पे वो रहते हैं, जिस सोसाइटी में यूके में रहते हैं, क्या दे रेस्टोरेंट वाली कितने सालों से रहते हैं, इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए उनको मानना पड़ेगा। केवल सिर्फ रिक्वायरमेंट एज पर द इंग्लिश मैरिज एक्ट व्हाई वी नीड टू एक्सेप्ट फॉर लॉ। पहला समझ में आ गया कि भाई हमारे यहाँ पे वो कायदा है लेकिन वहाँ पे उनके कायदे के अनुसार वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी हमारा कायदा को सुनना पड़ेगा, हमारे कायदे को यूके में रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। विकास से नहीं, इंडिया के लॉ हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं होते, समझ रहे हो? एंड ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है। सेकेंडली, if the court is to carry out in a rational manner the policy to which it is now committed, that of entertaining actions in respect of foreign claims, it must, in the nature of things, take account of the relevant foreign laws or laws. जब भी आपने एक बार मान लिया, you have accepted that we are going to entertain cases involving foreign elements from the foreign citizens. That means indirectly you have to accept that you also have to follow the foreign laws in certain aspects. At least जो पिछला आपने जो एग्जांपल देखा उसमें एटलीस्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मैरिड है, अभी उसका जो कंपनसेशन होगा या जो उसके रिलेटेड जो भी आगे वाले लॉज होंगे वो हम खुद पे अप्लाई करेंगे। कंपनसेशन हम इंग्लिश लॉ के हिसाब से करेंगे, लेकिन मानना तो पड़ेगा कि मैरिड है। एग्जांपल सेकंड, a claimant for instance seeks damages for breach of contract that was both made and to be performed in France. फ्रांस में आप इमेजिन कीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फ्रांस में, उसको इंप्लीमेंट किया फ्रांस में, ठीक है? Under the existing practice, the court is prepared to create and enforce in his favor if he substantiates his case an English right corresponding as nearly as possible to that which he claims. अभी फ्रांस में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फ्रांस में उसको इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन केस जो फाइल हुई है वो यूके में हुई, तो कोर्ट क्या रहेगा, कितने हद तक आप फ्रेंच कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंच में होगा तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन के बाद इंग्लैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा और फ्रांस का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा होगा सपोज, लेकिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, किसी को पता है क्या है? यस, आप जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो सबसे पहले तो आपके ऊपर कोई कोवर्शन नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, यू शुड बी अ मेजर, यू शुड नॉट बी अ माइनर, 18 साल के छोटा बच्चा नहीं हो सकता, यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड। अब ये इंग्लैंड में भी सेम है ना, there might be a criteria which might be little different, but majority of the criteria are the same। तो आपको इंग्लिश में या इंग्लिश लॉ में उसको रिलेट करके बताना पड़ेगा कि सर ये हमारा फ्रांस का लॉ है, ये इंग्लैंड का लॉ है, इसमें ये सिमिलरिटीज है, तो एटलीस्ट इतना तो कंपनसेशन दे दीजिए। ऐसा नहीं कह सकती कि कंप्लीटली डिफरेंट है, some things are similar, that proves that it was a valid contract। अगर वैलिड प्रूव हो गया तो कंपनसेशन भी मिलेगा। Okay. However, neither the nature nor the extent of the relief to which he is rightly entitled, nor indeed whether he is entitled to any relief can be determined if the law of France is disregarded। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्रांस में होता, केस भी फ्रांस में होती, तो मुझे जो कंपनसेशन मिलता वो ज्यादा मिलता।
इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से, एक कंपेयर करोगे तो वो भी इनजस्टिस है, क्योंकि ये लॉ जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सारा फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, फॉर्म किया गया, बट लेकिन जो दूसरा जो पर्सन था वो इंग्लैंड में भाग के आ गया तो आपको वहां पे केस फाइल करनी पड़ी ताकि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आपका भी कन्वीनियंस हो। तो फ्रेंच लॉ में आपको ज्यादा मिलता है कॉम्पेंसेशन, इंग्लिश लॉ में आपको कम मिल रहा है। इजंट दैट अनफेयर? अनफेयर। तो जो यूके का जो कोर्ट है वो देखेगा फ्रांस अगर होता तो कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा और अगर हमारा कितना कॉम्पेंसेशन। फॉर एग्जांपल फ्रांस में उसको 1 करोड़ मिलते और हम उसको 75 लाख दे रहे हैं, 90 लाख दे दो, समझ रहे हो? ऐसा बैलेंसिंग एक्ट करना जरूरी है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, मैं एग्जांपल देता हूं। इंडिया में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी, मर्डर के लिए, गैंगरेप के लिए, ठीक है, सेडिशन, टेररिज्म के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है। लेकिन यूरोप में डेथ पेनल्टी नहीं है, वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो जब भी ये यूरोप में अगर चल रहा है तो वो बोलेंगे देखिए भाई डेथ पेनल्टी तो दे नहीं सकते पर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते। कुछ बैलेंसिंग एक्ट करना जरूरी है ताकि न्याय हो। ओके, this is because to consider English law alone might reverse the legal obligations of the parties as fixed by the law to which their transaction both in fact and by intention was originally subject। तो जब भी कैसा होता है, कई बार आप जब फ्रेंच लॉ को इंग्लिश लॉ में ट्रांसलेट कर रहे हो या आप कंपेयर कर रहे हो, देयर कैन बी मिस इंटरप्रिटेशन, गलती हो सकती है whenever you are trying to implement or interpret a law of a foreign country in your country, क्योंकि आपको आना वाला पता नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में कई बार गलती होने की वजह से भी इंजस्टिस हो सकता है। तो ये ना हो, ये गलतियां ना हो, इससे इंजस्टिस ना हो, इसीलिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे ये सही इंटरप्रिटेशन हो। और वो प्रोसीजर कौन बताता है? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। वो हम देखेंगे कि क्या डॉक्ट्रिन्स है, प्रिंसिपल्स है, वी विल गो इन डिटेल्स जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर, करेक्ट, वो कैसे थी, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से डॉक्ट्रिन्स, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशन इस्तेमाल करके ये सारे जो डिफिकल्टीज हो रहे हैं इंटरप्रिटेशन में उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। A promise, for instance, made by an Englishman in Italy, जो लोग इटली करते हैं, किसने किया प्रॉमिस? इंग्लिशमैन, and to be performed there, आपको इटली में ही उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना है। If valid and enforceable by Italian law, would not be held void by English law। अगर ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट में आप जाते हैं जो इटली में वैलिड है, इटली में वैलिड है, आप इंग्लैंड से हैं, आप इटली में जाते हैं, वहां पे आप एक प्रॉमिस करते हो, प्रॉमिस को एग्जीक्यूट आपको इटली में ही करना है, एंड एज पर द इटालियन लॉ इट इज वैलिड प्रॉमिस। तो इंग्लिश कोर्ट में भी उसको वैलिड ही माना जाए, भले ही कंडीशंस या क्राइटेरिया अलग हो, क्योंकि जो क्लेमेंट है भले ही वो इंग्लिशमैन हो, लेकिन वो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस जो किया है वो इटालियन लॉ के हिसाब से, इंग्लिश लॉ के हिसाब से नहीं। भले ही केस जुरिडिक्शन इंग्लिश है, इंग्लैंड है, लेकिन उनको मानना पड़ेगा कि प्रॉमिस वैलिड है। ओके, अभी आपको पता होगा कंसीडरेशन का मतलब, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड आल्सो हैव कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब देयर हैज टू बी सम मनी इन्वॉल्वड और समथिंग इन काइंड। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सब गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना, तो इट कैन बी इन मनी और इट कैन बी इन काइंड, कि भाई आप मुझे ये प्रोडक्ट दीजिए मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, या आप मुझे ये सर्विस दीजिए मैं आपको ये पैसे प्रोवाइड करता हूं। So naturally there is a give and take relationship in a contract, correct? So in that kind of a situation, consideration is a very important element in English law. It is also a very important element in Indian law. Indian law के हिसाब से भी बहुत important है, correct? इस सिचुएशन में अगर इटली में consideration is not required, suppose उनके इंडियन लॉ के हिसाब से consideration is not a mandatory criteria for a valid contract, but still promise is a promise। उसको execute किया, perform किया, उस परफॉर्मेंस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है इसका मतलब उसको नुकसान होता है, उसको नुकसान भरपाई होनी चाहिए। भले ही क्राइटेरिया अलग है, बट स्टिल अगर इनजस्टिस हुआ है तो उसको जस्टिस मिलना जरूरी है।
चाहे वो इटालियन लॉ हो या इंग्लिश लॉ। जब हमने वो प्रॉमिस किया इट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो उसका उसके बाद भले ही केस इटली में हो, इटली में होगा तो नेचुरली सवाल ही उठता है। बट अगर वो इंग्लैंड में भी जाके केस फाइल करता है इसलिए उसको वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उसको इटालियन लॉ को एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द फॉरेन लॉ ऑफ इटली, ठीक है? In justifying this reference to a foreign law, English judges and textbook writers have frequently used the term comity, that is Association of Nations for their mutual benefit, a phrase which is grating to the ear when it proceeds from a court of justice. What do you mean by committee of nations? Association of nations. ये एक डॉक्ट्रिन है, a group of different nations. Correct. This committee of nations का मतलब ये है कि it's an association of number of groups or number of countries together. बहुत सारे जैसे एक साथ के common rules regulations, for example सात पता है, South Asian Association of Regional Cooperation. इसके अलावा BIMSTEC है, इसके अलावा आपकी NATO है, NATO के बारे में आपने बहुत सुना होगा, फिलहाल NATO वो है, WTO है, International Labour Organization, United Nations है। तो ये सारे अलग-अलग देश हैं जो साथ में आते हैं और they have certain rules, regulations, agreements, criteria जो उनके उन देशों के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगी तो सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ कॉमन मैकेनिज्म्स होने चाहिए, राइट? देयर हैव टू बी सम मैकेनिज्म्स टू सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट। लेकिन अगर आप ध्यान से इसकी तरफ देखें, कमिटी ऑफ नेशंस फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स, नॉट बाय जुडिशरी। ये एग्रीमेंट्स जुडिशरी साइन गवर्नमेंट साइन करते हैं, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी नहीं। जुडिशरी डज नॉट गवर्नमेंट साइन करेगी। जब डिस्प्यूट होती है तब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर देशों ने साइन किए होंगे तब उन चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है। जुडिशरी इसको ये नहीं करती है। कमिटी ऑफ नेशंस का जो एग्रीमेंट होता है वो जुडिशरी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, राइट? Although the term has been often used, analysis of it reveals that it has been employed in a meaningless or misleading way. क्योंकि जब अगर आप उसकी फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व नहीं है उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। कई बार इस टर्म का इस्तेमाल किया जुडिशियल जजेस ने, बहुत सारे अलग अलग ऑफिशियल्स ने, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन गलत जगह पे किया गया, इंटरप्रिटेशन गलत किया गया, क्योंकि the word itself is incompatible with the judicial function. ये जुडिशरी का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। To form associations, to form or sign bilateral agreements or multilateral agreements, ये काम सरकारों का है, जजेस का नहीं है। अगर सरकारें वो काम कर रही है, that is the branch of executive, judiciary cannot interfere. So the word itself is incompatible with the judicial function. For committees, the matter for sovereigns, not for judges, required to decide a case according to the rights of the parties. ये भाई कौन से पार्टी का ये डिसीजन गवर्नमेंट लेता है। आप सीआरपीसी आप जब पढ़ोगे, CRPC में whenever there is a dispute which arises from a foreign jurisdiction, आपको किसी foreign country से कुछ documents मंगाने हैं for example, okay, तो आपको उस देश को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या जज साहब या मैजिस्ट्रेट साहब खुद जाते हैं? वो क्या करते हैं? As per the CRPC की बात करता हूँ, CRPC के हिसाब से या CPC के हिसाब से अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई विटनेस है वहां पे दूसरे देश में बैठा, तो हम उनको जो मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं डॉक्यूमेंट्स कि देखिए ये विटनेस, ये डॉक्यूमेंट, ये चीज हमें चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो कंप्लेंट लॉन्च हुई है, यहाँ पे जो केस चल रही है, उसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी, वो गवर्नमेंट उस मैजिस्ट्रेट को बताएगा जिसका जुरिडिक्शन है, और वो जुरिडिक्शन से डॉक्यूमेंट वो मैजिस्ट्रेट अपनी सरकार को देगा, वो सरकार हमारे सरकार को देगी, हमारी सरकार मैजिस्ट्रेट को देगी। ये काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। ये काम किसका है? सरकारों का। जजेस क्या करते हैं? जजेस खुद नहीं जाते, दे हैव टू गो थ्रू द गवर्नमेंट। तो कई बार इंटरप्रिटेशन में गलतियां होती है, जजेस खुद इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ये इंटरप्रेट करते हैं गवर्नमेंट्स।
एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जजेस कुछ नहीं बोलते एक्स्ट्राडिशन के बारे में, गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि विजय माल्या को इंडिया में भेजना है कि नहीं भेजना। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको स्नोडेन पता होगा जिसने विकीलीक्स का लीक कर दिया था सब कुछ, वो कितने देर इक्वेडोर में कितने सालों तक पॉलिटिकल असाइलम में रहा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सरकारें कहीं जजेस बोलते हैं कि उसको लेके आओ, पर अगर जैसे अजमल कसाब के केस में आपने भी अजमल कसाब के खिलाफ केस चल रही थी मुंबई में, मुंबई सेशन कोर्ट में, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने पाकिस्तान में मंगाए, आए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्यों आएंगे? उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ये थोड़ा पाकिस्तानी सिटीजन है। पहला जो रिएक्शन था वो पाकिस्तान में नहीं शुरू हुआ, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन जब हमने सारे रिकॉर्ड दिखाया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन दिखाया, कहां से आए कैसे आए पूरा रूट दिखाया, फिर जब तब जाके पाकिस्तान एक्सेप्ट क्यों हमारा है। तो जब तक आप विटनेस नहीं दोगे, जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं दोगे, तब तक सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी, भले जज कुछ भी बोलता है। जज साहब क्या फर्क पड़ता है कि मुंबई का कोई सेशन कोर्ट का कोई सेशन जज कुछ बोल रहा है, पाकिस्तान में फर्क पड़ने वाला है? So that is the reason why ये जो डॉक्ट्रिन है कमिटी ऑफ नेशंस, इट इज मोर विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट्स एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू जजेस। If the word is given its normal meaning of courtesy, it is scarcely consistent with the readiness of English courts to apply enemy law in the time of war. Normally क्या होता है, जब अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं रशिया यूक्रेन, क्यों लेटेस्ट झगड़े चल रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, करेक्ट? ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, यूक्रेनियन के फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो रहे हैं, कोर्ट में केसेस हो गए, करेक्ट? आपको क्या लगता है यूक्रेनियन और रशिया में इंप्लीमेंट करेगा अपने देश में? आपको क्या लगता है रशिया यूक्रेन का लॉ इंप्लीमेंट करेगा अपने देश में अभी? ये जो सारी थ्योरी जो प्यार से बात कर रहे हैं, जब वॉर लाइक सिचुएशन आती है कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, सेम अप्लाइज टू इंडिया पाकिस्तान। समझ रहे हो कि थ्योरेटिकली ऐसा देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, पर जब वॉर होता है स्पेसिफिकली जो देश को आपकी एनिमी कंट्री है उसके लॉस को आप बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। जो भी अगर कोई एग्रीमेंट होगी तो आप सब कुछ उसको इंडस ट्रीटी पता है, इंडस पता है क्या है? इंडस रिवर, इंडिया पाकिस्तान ने बोला हम नहीं फॉलो करेंगे इंडस ट्रीटी, इनडायरेक्ट, ठीक है। जब जम्मू कश्मीर का जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी एक्टिविटीज बंद कर दी गई। नो इकोनॉमिक ट्रेड, इंडस्ट्री को हमने खारिज कर दिया, हमारे साथ दूसरे को न्यूक्लियर वेपन्स क्या डेटा देते थे वो बंद कर दिया। कितने सालों तक ऐसा चलेगा? आर्टिकल 370 तो है और उनको हमारी ज्यादा जरूरत है, समझ लो कि आप अगर मुझे बोलोगे कि सर पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया से मीट इंपोर्ट करना पड़ता, इंडिया से मीट लेना सस्ता पड़ेगा कि यूएसए से? इंडिया से, because you have to pay in rupee not dollar। तो पाकिस्तान कितने दिनों तक ऐसा करेगा? और वैसे भी हालत खराब, चाइना से पैसे ले रहे हैं, अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, you are falling in more and more debt। Alright, so आखिरी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉर लाइक सिचुएशन या सब एग्रेशन होगा तो कंट्रीज दूसरे देशों के लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। विदाउट ओके,